আমাৰ 31 তাৰিখ 7 মাহ 2024 তাৰিখৰ লিখাৱলী চেক গেটৰ যি ঘটনাক লৈ আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিহেতু আমি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছিলে, কৰ্মবিৰতিৰ আমি সিদ্ধান্ত উপনীত মানে এনেধৰণৰ হৈছে। আপোনাৰ আমি অসমৰ পৰা 4জন কোকৰাঝাৰৰ পৰা বড়োলোৱা আহিছিল। তেখেতলোক আহি লিখাৱালী লোহাৰচাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC অফিচত তেখেতলোক পাৰ্মিট বনাইছিল। আৰু পাৰ্মিট বনোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ লিগেলিটি মানে যিবিলাক আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিছিল তেওঁলোক দিছিল। দিয়াত তেওঁলোকৰ অফিচত অলপ মানে নাম খেলি মেলি হ'ল আৰু ফটোটো তেখেতলোকৰে থাকিল। গতিকে তেওঁলোক যে লেবাৰ, তেওঁলোকে পঢ়িব লিখিব নাজানে, তাত কি বিসংগতি হৈছে নজনা দুখত তেখেতলোকে এইটো নাজানি তেখেতলোকে চেক গেটত পাৰ হ'বৰ কাৰণে গৈছিল। যোৱাৰ অৱস্থাত চেক গেটত ৰিৰাম যিজন মানে ইনচাৰ্জ আছে, তেখেতলোকৰ বিসংগতি ধৰি তেখেতসকলক গাড়ীত পৰা নমাই দিলে। নমাই দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকৰ যে এই পাছখন ইলিগেল হৈছে, এই ইলিগেলকৈ বনোৱা বুলি তেখেতলোকক ৰাখি দিলে। ৰাখি দিয়াৰ পাছত তেখেতলোকে যাবলৈ নিদিয়াত আমালৈ ফোন কৰিল। মই তাৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে অল অসম পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেডাৰেশ্যনৰ ধেমাজি জিলা সভাপতি হিচাপে আহি মই তেখেতক আহি সুধিলোঁ যে সোধাত আপোনালোকৰ ইয়াত কি অসুবিধা হৈছে বা কেলৈ মানে যাবলৈ দিয়া নাই। যিজন ইনচাৰ্জ আছে তেখেতক সুধিছিল। তেখেতে তেতিয়া ক'লে যে আপোনালোকৰ এইটো গণ্ডগোল আছে, এইটো ইলিগেল পাছ, গতিকে এইটো যাবলৈ দিয়া নহ'ব, এওঁলোকক থানাত পঠাম। তেতিয়া মই ক'লোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ চিল মোহৰ মৰা আছে, গতিকে এইটোতো ইলিগেলটো হ'বই নোৱাৰে। গতিকে এইটো যদি আপুনি থানাত পঠাব লাগে পঠাওক, আমি থানাত আলোচনা কৰিম। তেতিয়া তেওঁ ডাইৰেক্ট মানে খং উঠি গ'ল। খং উঠি যোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে তুমি বেছি জনাৰ নিচিনা কৈছা নেকি, কি তুমি ক'ব লাগে তোমাকো থানালৈ পঠাম। তেতিয়া মই একো নকৈ মই ৰৈ থকা অৱস্থাত বাছাৰৰ পৰা এখন বলেৰ' প্ৰাইভেট বলেৰ'ত 4জন মানুহ আহিছিল। 4জন মানুহে মোৰ সন্মুখতে তেখেতক সুধিছিল যে ছাৰ আমাৰ পাছ নাই। তেতিয়া তেওঁ ক'লে তোমালোকে কেনেকৈ পাছ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ গৈছিলা? তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমি গেটত পইচা দি গৈছিলোঁ আৰু আজি 4 দিনৰ পিছত আমি ঘূৰি আহিছোঁ, গতিকে এতিয়া পাছ নাই, আমাক যাব দিয়ক। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে এই ভিতৰত গৈ আলোচনা কৰা। ভিতৰত টকা পইচা দি তেখেতলোকে ওলাই গুচি গ'ল। মই চালোঁ, চাই পিনে তেখেতৰ লগত মোৰ তৰ্ক হ'ল যে তেখেতলোকৰ পাছ নোহোৱাকৈ আপুনি যাবলৈ দিলে, গতিকে এওঁলোকতো সম্পূৰ্ণ পাছ আছে, তেওঁলোকৰ ফটো মাৰিছে, এইটোতো ইলিগেল হ'ব নোৱাৰে, এইটো লিখাবলীয়ে হয়। বাহিৰৰ হ'লেতো আমি কিবা এটা ক'লোহেঁতেন, কিন্তু এইটোতো লিখাবলীয়ে হয়, গতিকে এইটো ভুল হ'ব নোৱাৰে, আপুনি কিয় যাব নিদিয়ে, যাব দিয়ক। তেতিয়া মোক তেওঁ খঙত কৈ দিলে যে নাই তুম জাদা বলতাই, মানে তই বেছি কৈছ, তোকো থানাত পঠাই দিম। থানাত আমাক তেতিয়া লগে লগে তেওঁ এখন চুমুত আমাক পেচেঞ্জাৰকেইজনক আৰু মোকে লৈ গ'ল থানাত। লৈ গৈ থানাত মোক এটা মানে OC-ক তেওঁ ফোন কৰি দিলে। OC-য়ে লগে লগে মোক লগ পাই পিনে মোক এটা ৰুমত ভৰাই লগ কৰি দিলে বাহিৰ ফালৰ পৰা, আৰু পেচেঞ্জাৰকেইজনক মানে ভিতৰত ভৰাই দিলে, লকআপত ভৰাই দিলে। তাৰপিছত মোক ভৰাই থোৱাৰ পিছত মই উপায়হীন হ'ল, ৰুমৰ ভিতৰত আবদ্ধ। তেতিয়া মই লগে লগে সদৌ অসম আমাৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদক শ্ৰী জোন সোণোৱালক মই মোৰ সতীৰ্থ হিচাপে মই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁ সকলো সংগঠনৰ ল'ৰা লৈ আহি আমাৰ লিখাৱালী থানাত উপস্থিত হ'ল। উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক লগ কৰিবলৈ সুবিধাটো নিদিলে আৰু তেওঁলোকক মোক ওচৰত আহিবলৈ নিদিলে। নিদিয়াৰ পিছত এনেকৈ থাকি গ'ল। থাকি যোৱাৰ পিছত তেওঁ OC-গৰাকীয়ে দাবী ধমকি দি মোকো দাবী ধমকি দি ৰুমৰ ভিতৰত ভৰাই তেওঁ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ কি হ'ল নাজানো, আৰু মানে কিবা এটা কাৰণত তেওঁ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। গুচি গৈ তেওঁ ৰাতি 8টা বজাত আহিল। 8টা বজাত আহি পোৱাৰ পাছত তাৰপৰা মোক কয় তুম জাদা বলতা है, तुमको अभी तो जेल में भेजेगा। हम लोग পুলিচৰ লগত মানে তই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছ, গতিকে তোক ছেকশ্যন লগাই পিনে আমি এতিয়া যিকোনো ছেকশ্যন লগাই পিনে তোক ফচাই পিনে আমি জেলত পঠিয়াব পাৰোঁ। তেতিয়া মোৰ OC মেডামৰ লগত অলপ যুক্তিতৰ্ক হ'ল। যুক্তিতৰ্ক হোৱাত তেওঁ কি কৰিলে, মেডিকেলত মোক তেওঁলোকৰ পুলিচৰ যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ, সেই প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে মোক মেডিকেলত পঠালে। মেডিকেলত পঠাই আমাৰ মেডিকেলৰ যিটো ৰিপৰ্ট ডক্টৰ মেডামে লিখি দিলে যে এই মানুহজনৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে। গতিকে হাই প্ৰেছাৰ যেতিয়া আছে বুলি ক'লে তেওঁ অলপ ভয় খালে। তেতিয়া ভয় খাই তেওঁ ৰাতি 11টা বজাত মোক এৰি দিলে। আৰু এৰি দিয়াৰ আগতে কিন্তু তেওঁ এটা কাম কৰিছে, মোক জবৰদস্তি এপলজি এটা লিখিবলৈ ক'লে। মই মানে নিলিখোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যদি মই এপলজিটো লিখি দিলোঁ, আৰু বৰ্ড এখনত মোক চহী কৰিব দিছে যে তোমাক মানে জামিনহে দিয়া হৈছে বুলি। তেতিয়া মই বৰ্ডখনতো চহী কৰিছোঁ।
তাৰপৰা চহী কৰি মই 11টা বজাত ওলাই গ'লো। ওলাই যোৱাৰ পিছত পেচেঞ্জাৰ কেইজনকো এৰি দিলে। এৰি দিয়াৰ পিছত পেচেঞ্জাৰ কেইজনক এতিয়া ৰাতি 11টা বজাততো তেওঁলোকে দূৰলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দূৰলৈ যাব। গতিকে তেখেতলোকৰ এতিয়া কোনো গাড়ী ব্যৱস্থা নাই, ক'লৈ যাব কি হ'ব, তেওঁলোকৰ বিপাঙত পৰিলে। তেতিয়া আমাৰ চিলাপথাৰ মেক্সিকেপৰ আৰু আমাৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ সকলো সদস্যই লগ লাগি তেখেতলোকক নি চিলাপথাৰ হোটেলত ৰাখি খুৱাই বোৱাই ৰখা অৱস্থাত তেতিয়া তেওঁলোকে লেঙুৱাই লেঙুৱাই খোজকাঢ়িছে। তেতিয়া মই দেখা পাই তেওঁলোকক সুধিলো, তহঁতেতো দিনত ভাল আছিলি, গতিকে এতিয়া ৰাতি মানে তহঁতৰ এতিয়া কেলে লেঙুৱাই লেঙুৱাইছে? নাই ছাৰ বোলে আমাক বোলে বহুত মাৰিছে থানাত। তেতিয়া আমি কেনেকে মাৰিলে, কি কথা? আমি যেতিয়া সোধ-পোছ কৰিলে চাওঁ ক'ত মাৰিলে, তেতিয়া দেখিছোঁ ইহঁতৰ গোটেই ভৰি চৰিবিলাক ফুলি আছে, পুৰা গোটেইকেইজন ল'ৰা ভৰি ফুলি আছে। লগে লগে আমি ক'লো যে তোমালোকে এটা কাম কৰা, আজিতো ৰাতি এতিয়া ডক্টৰ নাপাবা, ৰাতিপুৱা আমি ডক্টৰ কৰিম, আৰু ডক্টৰ কৰি তোমালোকক মানে যি হেৰি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি সুবিধা কৰি দিম। তেওঁলোকক ৰাখি ৰাতিপুৱা আমি এইটো মোবাইল ৰেকৰ্ডিং কৰি আমি ভাইৰেল কৰিলোঁ। ভাইৰেল কৰি আমি গোটেই সংগঠনবিলাকৰ চিলাপথাৰৰ সংগঠন যিমান আছে, আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ সংগঠন আছে, সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আমি এইটো বিষয়ত আলোচনা কৰি আমি তাত বহিলোঁ। বহাৰ পিছত আমি বিচাৰি পালোঁগৈ যে আমাৰ অ' চি মেডামে যিটো কাম কৰি আছে, আগৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে আমি শুনি আছোঁ বা দেখি আছোঁ। আমাৰ তাৰ পৰা চিলাপথাৰৰ পৰা যেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ বিভিন্ন যাত্ৰীসকল আহে, ইয়াত মানে পাছ নহ'লে মানে 500 টকা দিব লাগে, আকাশী গংগালৈ গ'লে 500 টকা দিব লাগে, আৰু গাড়ীবিলাকৰ চেকিঙৰ নামত যদি গাড়ী ড্ৰাইভাৰে অকণমান কিবা এটা কয়, চেকিঙৰ নামতো তেখেতক পইচা দিব লাগে। এনেকুৱাবিলাক অশান্তি কৰি থকাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ক'লোঁ, নাই, এই অ' চি গৰাকীক আমি এটা শিক্ষা আমি দিব লাগিব। গতিকে এই শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি আমি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিলোঁ। আজি কৰ্মবিৰতি কৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ চিলাপথাৰ মানে লিখাবালিত কালি আমাৰ সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ SP ইনচাৰ্জ অফ SP হেৰিয়ৰ পৰা কি কয় বাছাৰ পৰা আহিছিল। তেখেতলোকে আমাক মানে DC অফিচৰ চেম্বাৰত নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। তাত আমি সিদ্ধান্ত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনাত কোনো উপকৃত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। তেখেতলোকৰ যিহেতু লোহাৰ চিয়াঙত SP গৰাকী, পাৰ্মানেণ্ট SP গৰাকী নাই, পাৰ্মানেণ্ট DC গৰাকী নাই, তেওঁলোকে ছুটি আছে, তেওঁ মাত্ৰ ইনচাৰ্জ আছে। তেওঁ ক'লে যে আমি তেওঁলোকক জনাবহে পাৰিম, এই আলোচনাৰ বিষয়ে আমি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি অটুট ৰাখিলোঁ। অটুট ৰাখি আজি আমাৰ লিখাবালি লোহাৰ চিয়াং জিলাৰ আকচু মানে অৰুণাচল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, লোহাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমাৰ গালো ছ'চাইটি, তেওঁলোকৰ সভাপতিগৰাকী আৰু সকলোৱে আহি আমি ইয়াত এখন আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ আলোচনা বিলোচনা হৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত 3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছে আমাক। আমি 3 দিনৰ ভিতৰত SP DC লগত কথা পাতি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ যিখিনি দাবী আমি সেইখিনি পূৰণ কৰি দিম। যদি তেওঁলোকে DC আৰু SP নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি একেলগে লোহাৰ চিয়াং আৰু অসমৰ একেলগে লগ লাগি আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম। আৰু সেইটো কাৰণে আমি আজি সভাখনত বহিলোঁ। বহি আলোচনা বিলোচনা কৰি আজি আমি ইয়াতে বহি প্ৰেছ মিটত উপনীত হ'লোঁ। ধন্যবাদ। ये इस मीडिया के माध्यम से आज का जो हम लोग बैठक हुआ है, उस चीज़ का मैं जो रिजोल्यूशन लिया आउटकम, क्योंकि हम भी कल हमारा गालो गवर्निंग बॉडी का एक मीटिंग था, रात को 11:30 बजे से सुनना कि कोई बंद वगैरह है, तो हमने सोचा बंद होने से फिर हमारा डेलीगेट लोग भी आना जाना तकलीफ होगा, और एज ऑफ सडन बंद होना भी स्पेशली हमारा फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रॉब्लम होगा बोल के भी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट का माध्यम से मैं जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने वाला यूनियन से डिस्कस करने के लिए बोला है कि हम लोग एमिकेबली एटलीस्ट हम लोग एक रिजोल्यूशन लेना है। एज ऑफ सडन बंद करने से एटलीस्ट कम्यूटर लोगों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि दे आर इनोसेंट। तो इस चीज़ को मानते हुए हमने आज संडे होने का बावजूद भी हम लोग सभी मेंबर्स, ये मेंबर जितना आया है बहुत ही एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, करीब करीब लोअर सियांग का सभी जितना भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आया है, और आपका धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का भी मैक्सिमम सिविल सोसाइटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आतासू, देन लेबर यूनियन, कार यूनियन सभी आया हुआ है। और हम लोग ने बहुत देरी बात किया, करीब करीब 2.5-3 घंटा बात किया, और हम लोग ने उस चीज़ को समझा कि एज ऑफ सडन बंद होने से भी हमारा जो फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जैसे वेस्ट सियांग है, लेपारादा है, अपर सुबनसिरी है,
उनका इनोसेंट पब्लिक को तकलीफ ना हो। एक जिसने कहा वो कि जो ओसी मैडम जो है बहुत हरासमेंट देता है, तो एक मैडम का हरासमेंट देने से सभी 4-5 डिस्ट्रिक्ट को तकलीफ मिलने से तो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सोच के हम लोग सब रेस्पॉन्सिबल आदमी लोग बैठ के आज ये एक रेजोल्यूशन लिया कि सबसे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनाना चाहिए। एसपी साहब को हम लोग रेजोल्यूशन देगा जिसमें ओसी इज द इंस्पेक्टर, इसलिए उसको डीएसपी रैंक का कोई ऑफिसर से कमेटी कंस्टिट्यूट करके इंक्वायरी करना है कि रंजन गोगोई के साथ क्या इंसिडेंस हुआ है उस रात 31 तारीख का दिन और रात में, नंबर 1। नंबर 2, हमारा आज का जो कंक्लूजन ये है कि यहाँ का सबका लोग बाग जो आए हुए कहना ये कि जब से ये ओसी मैडम आया है तब से यहाँ का जो नेबरिंग स्टेट का सिटीजन और यहाँ का लोअर सियांग का सिटीजन से बहुत दुखी है। ये लोग का कहने के हिसाब से सभी को तंग करता है। तो इस हिसाब से हम लोग रेजोल्यूशन ये लिया कि इमीडिएटली जो है ये ओसी मैडम को जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए। और 31 तारीख का दिन में जो रोस्टर किया चेक गेट में, उस रोस्टर के दौरान जो डिप्यूटेड जो ये है आपका संतरी है, उन सबको भी इंक्वायरी होना चाहिए कि उन लोग का कहने के हिसाब से, इस संगठन का कहने के हिसाब से उन लोग का साथ भी मिसबिहेव हुआ है, उनका लेबर को भी मारा हमने ताकि नहीं देखा, फिर भी इनका स्टेटमेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि ये करना भी ठीक नहीं है। देयर शुड बी ए ह्यूमैनिटी विद पुलिस ऑल्सो। तो इस चीज़ को हम गंभीरता से रखते हुए हम ये एसपी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाए। और सेकेंड, हमारा ऊपर वाला जो फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हमारा एसोसिएशन का भी कहना है कि आईएलपी को जो है तो इस सिस्टम इन सेंस, मैं एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम ये भी नहीं कहता कि इस सिस्टम जो बिना आईएलपी का जाने हुए, ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नाउ डेज आप लोग देख ही रहे हैं कि ड्रग पेडलर्स है बहुत है, चेक करना तो बहुत जरूरी है। इस चीज़ को हम लोग जो है आईएलपी तो लेना जरूरी है, इस चीज़ को फिर भी एटलीस्ट एक सुविधा के लिए चेक पोस्ट का सामने जो एक काउंटर, एक चेक पोस्ट, ये आईएलपी इशू करने का जो सिस्टम एक तो बनाने से बहुत ही अच्छा हुआ। हालांकि आज हमारा फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट का साथियों का भी कहना है कि एटलीस्ट चेक गेट में होने से अच्छा है एक काउंटर, क्योंकि अब डीसी ऑफिस जाएगा आएगा, फिर किसी को कभी समय भी नहीं होता है, कोई ये अपना इमरजेंट कारण से भी आना जाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये भी प्रशासन से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है आईएलपी इशू करने के लिए चेक गेट में बैठाना चाहिए। क्योंकि हम प्रशासन कहिए, पुलिस कहिए और कोई भी संगठन कहिए, हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए है, यहाँ पब्लिक का सुविधा हो। तो मेरा भी अपना तरफ से भी ये कहना है, जीडब्ल्यूएस लोअर डिस्ट्रिक्ट का तरफ से यही कहना है, अनुरोध रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक आईएलपी को एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर एक तो बैठा के एक रोस्टर बना के आईएलपी चेक पोस्ट में देने का व्यवस्था करने से अच्छा है। इसके लिए मैं डीसी साहब से भी पर्सनली भी बात करूंगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं अनुभव करता हूं कि प्रॉब्लम है। देन सेकेंड है कि हमारा कोई नॉलेज नहीं, लेकिन अभी कहा है कि यहाँ एक हम लोग का लेखावली में टूरिस्ट कुछ जगह है, जैसे मालनीथान है, आकाशी गंगा है। तो आगे भी जो मीटिंग में जो बातचीत हुआ है, सुनने में आया कि उनको भी तकलीफ मिलता है। तो मेरा हिसाब से मेरा दरख्वास्त ये रहेगा कि आईएलपी जो टूरिस्ट काउंटर है उनको मेरा हिसाब से 24/7 डेज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग का कंप्लेन ये है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है जो टूरिस्ट काउंटर में। तो उसका वजह से जैसे डिब्रूगढ़ से कोई आया, कोई गुवाहाटी से आया, कोई साउथ से आया, आकाशी गंगा किसी को देखना, मालनीथान देख, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आज का दिन में आधार कार्ड एक तो, आइडेंटिटी कार्ड एक तो है, देन हमारा ईपिक भी है, देन हमारा पैन कार्ड भी है। उस डॉक्यूमेंटेशन को जो है वेबसाइट में, एक वेबसाइट खोल के वेबसाइट में देने से जो भी आने वाला होगा उस वेबसाइट से अपना डॉक्यूमेंटेशन करके आईएलपी इजी वे में मिलने का एक समाधान करने से अच्छा है। बाकी मैं
आज का जो रेजोल्यूशन ये है कि इस रेजोल्यूशन को हमने रिक्वेस्ट किया है सभी संगठन को कि 3 दिन के अंदर हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है, फर्स्ट है एक इंक्वायरी कमेटी बैठाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कंक्लूजन में, बाय द रैंक ऑफ by considering an inquiry committee by the rank of DSP against the incidents of 31/7/2024 और जल्द से जल्द ये ओसी मैडम का जो है तबादला होना चाहिए। और दूसरी सर, मैं बीच में आपको एक सवाल कहना चाहूँगा आपके आगे जो आपने पहले सर, हमें सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता चला है कि जो ओसी मैडम है ये इनका जो है ऑलरेडी जो उसका ट्रांसफर हो चुका है तो सर क्या ना उसको मुझे पता नहीं, क्योंकि हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है ट्रांसफ़र हुआ कोई आने वाला जाने वाला, क्योंकि मैं तो पब्लिक हूँ। उसको जानने से आपका एसपी ऑफिस में जानेगा या थाना में जानेगा, क्योंकि हमारा उससे कोई लेन किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मेरा लेना देना नहीं है। मेरा कहना ये है कि आज का डिसीजन ये हुआ है कि ये ओसी मैडम बैठने से पब्लिक हारसमेंट हो रहा है बोर्ड स्टेट का, इस आदमी को जो है ट्रांसफ़र करना है, मतलब ये है। बाकी गवर्नमेंट आगे किया नहीं किया उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज का मीटिंग का रेजुलेशन के हिसाब से एट्रोसिटी ज़्यादा हो गया है, इस ओसी मैडम बैठने से इसको जो है हटाना है, इतना ही है। अगर आप लोग का जो डिमांड है अगर वो पूरा नहीं हुआ, कितने दिन तक के लिए आप लोग ने टाइम दिया? ऐसे है हम लोग से भी बात विचार करके, वैसे तो हमने चाहे एटलीस्ट मेंटेबिलिटी पीरियड देयर शुड बी 1 वीक, बट यहाँ का सभी संगठन जो है नहीं मान रहा है, तो हमने 3 दिन का रखा है। 3 दिन जो है कल से गिना जाएगा। आज संडे है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे बृहस्पतिवार तक जो है इस जितना भी यहाँ का रेजुलेशन का डिमांड है पूरा नहीं होने से हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टूडेंट यूनियन लोग है जो भी है, और असम का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी संगठन है, हम लोग सब मिलके डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, ये पक्का है। दैट इज पास इन रेजुलेशन एंड रेजुलेशन विल बी सबमिटेड टू डीसी एंड एसपी इमीडिएटली बाय टुमारो। ये जो अभी यहाँ जो उसी मैडम हाँ, वो जो कोई जो आदमी आता है सर जब पास नहीं रहता है, जो 500,000 का जो कलेक्ट करता है उसके लिए आप लोग वो देखिए ये आप लोग उसको क्या सुनिए ये करप्शन का नहीं सुनो इस बात को सुनो। आपको पता है कि लेता है बोल के, देयर शुड बी प्रूफ। नहीं मतलब सुनो, सुनने में बहुत कुछ सुनेगा, कल किसी को मर्डर किया आप सुन के उसको नहीं देख के मर्डर के बोलेगा, ऐसा नहीं। मेरा कहना है एट्रोसिटी है, अब एट्रोसिटी वर्ड को समझिए। अब वो पैसा लेता है नहीं लेता है वो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कल को बोल देगा हम नहीं लेता है, कोई किसी के पास है डॉक्यूमेंट, दिस इज इमेटेरियल। कंप्लेन दे उसको आपको कैसे एक्शन देगा अगर साबित हो गया तो? देखो कंप्लेन ओसी मैडम पैसा लिया बोले कंप्लेन नहीं है, यू मस्ट क्लियर। कंप्लेन ये है कि 31 तारीख का दिन में 1:30 बजे जो है कोई क्लरिकल एरर में जो है एक आईएलपी का प्रॉब्लम हुआ है, उससे जो पूछताछ करने गया अपना एक कोई एसोसिएशन का हेड होते हुए, तो थाना में मिसबिहेव हुआ, वो कहने में ये बोला हमको एसल्ट हुआ, तो इसके लिए हम लोग भी वी फील सेंटिमेंट कि ऐसे क्यों होना है, तो इसके लिए बैठा है। अब कोई क्या लेता है देता है उसको हम लोग कोई उसका जवाबदारी नहीं है, उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। ये पास जो बना है तो किसी ऑफिस से बना हुआ पास तो इशू किया ना, हाँ। एक फोटो या नाम को लेकर जो इशू हुआ है तो वो किसी ऑफिस में उसमें देखो उसमें ऐसे है, सुनो उसमें इंक्वायरी में पता चल जाएगा, देयर विल बी इंक्वायरी। अब फोटो किसका है नाम किसका है वो इंक्वायरी में पता चल जाएगा ना कैसे हुआ है। आज हम फोटो भी नहीं देखा है, वो आदमी को भी हमको पता नहीं है, और वो आईएलपी हम नहीं देखा है, मैं कैसे कह दूं कि वो वहां से गंडगोल हुआ है, ये सर्टेन हम नहीं कर सके। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये ओसी मैडम जब से आया है, जो सभी संगठन का कहना है को हरासमेंट ज्यादा देता है, तो उनको जो हटाना है, और इनको जो असल्ट हुआ है जो इनका स्टेटमेंट के हिसाब से उनका इंक्वायरी होना है, जस्टिस होना है, इतना ही कहना है मेरा। और आईएलपी का जो है इसके लिए मैं आगे बता दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा कि जितना सके एक इजी तरीका से, इजी इन सेंस ऐसे नहीं आप फाड़ के दो, ऐसे नहीं, डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ में आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में देना है उस चीज को। जो हम लोग चेक पोस्ट का सामने काउंटर एक तो
काउंटर एक तो रखने के लिए बोलेगा। और उसमें एक अब ये भी बात है कि प्रशासन के पास, क्योंकि ये बहुत ही नया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ऑफिसर का कमी भी हो सकता है, फिर भी कमी के बावजूद भी जैसे भी कुछ भी रोस्टर सिस्टम कर सकता है, करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेगा। और दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये सब कोई प्रॉब्लम है। हमारा ऊपर जाने वाला लोग के लिए भी, काम करने वाला लोग का तकलीफ है। कोई लेबर जाता है, आप डीसी ऑफिस जाओ, फिर कभी किसी दिन बाबू नहीं मिले, किसी दिन छुट्टी में लेबर आ जाता है। आजकल तो लेबर मिलना भी मुश्किल, मिल के ले आने से सैटरडे संडे को तो ऑफिस खुलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये चाहेगा कि इस ये चेक पोस्ट का सामने डीसी से रिक्वेस्ट करेगा कि एक काउंटर खोल दे, कि सभी यात्री जितना ऊपर जाने वाला है तकलीफ ना हो।